So I was watching Sadhguru's podcast on Joe Rogan, which is totally uploaded on Spotify with the video also, because Rogan's Sadhguru's podcast is just 20 minutes on the YouTube actually. If you go onto Spotify, you get 3 hours. In that he was talking about that the inner engineering which makes your body pleasant, which creates the juices or the ras inside, producing the chemical inside, is the ultimate solution, and which is a trap actually. क्योंकि अगर सिर्फ और सिर्फ जूसेस रिलीज करने से मामला सेट हो सकता था तो मामला खराब हो सकता है इसमें, और इससे में कई लोग फंस गए. तो इनर इंजीनियरिंग इज इनकम्प्लीट एक्चुअली. A 65-year-old person is talking about releasing the chemicals within and concluding it on that is the ultimate solution, is not the right way actually. And who am I to tell this? Okay, you should see in your experience also. So let एक एग्जाम्पल लेते हैं, स्टोरी देखते हैं. Let's go into this story mode right now. In 2019 I was doing daily meditation almost. Suddenly out of nowhere my girlfriend left me and मैं पुणे में था. उसने मेरे को कहा मैं रिलेशनशिप में नहीं रह सकती हूँ, because she had gone doing an affair with somebody else. I flew from the city the same night, और उसके बाद रात में मैं लैंड हुआ, क्योंकि मुझे ट्रेन से आने का एक्चुअली मेरे अकाउंट में 11,000 रुपये थे सिर्फ, और ट्रेन से आने के लिए मेरे पास सब्र नहीं था, क्योंकि अगर मैं ट्रेन से आऊँगा और ब्रेकअप हो रखा अभी जस्ट 24 घंटे तो मैं ओ माय गॉड 24 घंटे मेरी वाट लग जाएगी. इसलिए अच्छा है कि मैं पैसे ज़्यादा दे दूंगा, और 3,500 की टिकट थी, और मैं वहाँ से उड़ा और सीधा दिल्ली में लैंड हो गया. दिल्ली में लैंड होते ही मैं सुबह उठा और बात करी उससे, तो उसने बोला मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ, सॉरी, मेरे को फ़ोन आज के बाद मत करना. उसने सारे नंबर ब्लॉक कर दिए, दोस्तों का नंबर ब्लॉक कर दिया, मेरे 2 दोस्त मेरे साथ में रहते थे उसका नंबर ब्लॉक कर दिया. दोपहर आते आते मैंने कमरा बंद किया और मैं बैठ गया मेडिटेशन करने, which was working really good till the breakup. It was like there is no loneliness, absolutely everything is fine, everything is good. The world was ecstatic in the terms of Sadhguru Chakki Vasudev ji. I sat, did meditation. I was not able to concentrate on anything. Then I wanted views on YouTube in 2020, but I was not getting it. I was getting kind of tension, stress out of that also. Then there was some things I wanted in my life. It was not happening the way I wanted, and I did meditation, it didn't work. So साधना is at that point मैंने कहा कुछ गड़बड़ है, साधना सिर्फ काम नहीं कर रही यहाँ पे, बिकॉज जैसा कि मैं पिछले कुछ पॉडकास्ट से साधना के ऊपर जोर देता चला रहा हूँ, मैंने कई बार ये भी बोला है कि साधना जो है वो काम नहीं करती. और सदगुरु जी जो है वो उन्होंने कहा इनर इंजीनियरिंग कर लो, और कहाँ से कर लो, बुक पढ़ो, बुक से इंस्ट्रक्शन लो, और उसके बाद गुरु के पास आ जाओ. मतलब अल्टीमेटली वो शांभवी महामुद्रा सिखाते हैं और वहीं से करो. और कई लोग शांभवी महामुद्रा कर चुके हैं और आ चुके हैं, और कई लोगों से मैंने बात करी है और उनकी जब मुंह खुलता है तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन बात कर रहा है. दे आर टोटली रेस्टलेस राइट नाउ. They have not achieved anything in their life.
they have not gone anywhere. They have not reached actually anywhere, wherever they wanted to reach. This is what people are teaching. It's not going to work. And don't trust me. For God's sakes, don't trust me, please. Do not trust me. Trust your experience. Trust your experience ना. Why are you trusting me? Don't trust me. I am nobody. मेरे व्यूज नहीं है. मैं पॉडकास्ट पे सुमड़ी में काम कर रहा हूं. मैं यूट्यूब पे एक्टिव नहीं हूं. पार्थ सिंह को जो लोग जानते हैं एज ए म्यूजिशियन जानते हैं. मैं कोई नहीं हूं. और ना ही मेरे को बचपन में कोई ऐसा, मैंने पहाड़ पे बैठा था और मेरे कुछ कुंडलिनी जागृत हो गई या कुछ हो गया. मेरे साथ कुछ नहीं हुआ ऐसा. That's what I am. I am a person who learns from my experience. I am a person who learns from everybody and everything or every time. That's it. I observe, I question, I learn. Sadhguru's inner engineering is not going to has not taken you anywhere. That is because you are trying to release that chemical which he is talking about. अभी मैं आपको बताता हूँ एक और कहानी हुई. रिसेंटली मेरे पास एक सब्सक्राइबर है, Amazon म्यूजिक पे मेरे को सुनती हैं. उन्होंने मेरे को कॉल किया. शी इज 22 years old. She told me that my boyfriend has some issues mentally and he wanted to have that experience because he was doing drugs or he was doing alcohol at that point. बट उसने सदगुरु को सुना. सदगुरु ने कहा बाहर से अल्कोहल मत लो, अंदर से अल्कोहल रिलीज करो, मतलब अंदर से मजा रिलीज करो, अंदर से मजे करो. और वो वहां गया और उसने काफी साधना करी. उसके साथ कुछ नहीं हुआ और हुआ भी तो कुछ, मतलब पता नहीं, कुछ नहीं हो रहा था ये वो एंड ऑल दैट. मैंने कहा आई हैव ऑल्सो डन इनर इंजीनियरिंग ऑनलाइन. मैंने खुद कर रखा है 2020 में. जब मैंने उसको किया तो मेरे साथ भी कुछ नहीं हुआ था. डोंट गो टू माई वर्ड्स, गो टू योर एक्सपीरियंस. What is your experience seeing? Because the suffering is divided into 2 parts. Actually 5 parts, but let's, for the simplicity, मैं यहाँ पे 2 parts में divide करता हूँ. Suffering एक होती है intellectually, आपकी आकांक्षाएं, आपकी अपेक्षाएं, आपकी मन्नत, आपकी जन्नत, आपकी क्या कहते हैं, मतलब मन्नत नहीं पूरी हुई, या जो जन्नत चाहते थे उस जन्नत को आप नसीब नहीं हुआ. आपकी जो आरजू है, जो इच्छा है, जो आपकी वासनाएं हैं, जो आपके इंटरेस्ट हैं, जो आपकी लॉन्गिंग है, वो पूरी नहीं हो रही है. जो भी आप चाहते हो आपको मिल नहीं रहा है. ये एक प्रकार की सफरिंग रिलीज करता है. और एक सफरिंग है जब आपके पास सब कुछ हो जाता है, उसके बाद जो सफरिंग रिलीज होती है वो एक सफरिंग है. ये दोनों ही मूर्खता है एक्चुअली देखा जाए. ये दोनों स्टेट अलग अलग स्टेट है, लेकिन इसमें जो सोल्यूशन आप डाल रहे हो वो सोल्यूशन सही सोल्यूशन नहीं है. इनर इंजीनियरिंग या शांभवी महामुद्रा से इट इज नॉट गोइंग टू सॉल्व. हाउ कैन यू टेक आउट अ डिजायर फ्रॉम अ पर्सन? कैन यू टेक इट आउट? नो, यू कैन नॉट टेक इट आउट. You need to understand something. See, I want this. I am passionate about this, but I am not successful in this and I am depressed. I want to become an actor. I am not getting that. I am depressed. मुझे कोटा क्रैक करना है, मुझे UPSC क्रैक करना है. I am really depressed. Now this person listens to Sadhguru, goes to the ashram, learns Shambhavi Mahamudra and inner engineering, comes back and realizes that he has not gone anywhere. He has not achieved anywhere. He is still there only. He is still suffering. Why? Because the desire is there only. गौतम बुद्ध ने एक बात कही थी, desire is the root cause of suffering. And then there is second situation. There is this person who has achieved everything in his life and he has been listening to Sadhguru on YouTube. Sadhguru talks about that ecstatic chemical which is released, which is right actually, it is actually released. I'm not questioning the chemical which is released. I'm not questioning that. I'm questioning that this person
saw Sadhguru, watches him on YouTube, and then he goes to ashram, learns Shambhavi Mahamudra, learns inner engineering, comes back, doesn't get anywhere. There are people like that. If you see, there are people. The thing is that the difference between these two person is, एक डिजायर का परसुएट कर रहा है, एक परसुएट कर रहा है डिजायर को, उसको डिजायर नहीं मिल रहा है, वो प्रॉब्लमैटिक है, और एक डिजायर जिसको मिल चुका है, उसको सब कुछ मिलने के बाद भी अच्छा नहीं लग रहा है, एक वो प्रॉब्लम है. ये दोनों का अलग अलग सोल्यूशन है. सी सेल्फ रियलाइजेशन की बात कहीं नहीं होती है. एक तो ये भी है, ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट सेल्फ रियलाइजेशन. बट लेट्स कम टू द सिनेरियो 1. सिनेरियो 1 में लड़का आईपीएस बनना चाहता, नहीं बन पा रहा है, परेशान हो रहा है, तो उसने कहा कि अब एक काम करते हैं, ये फॉलो करते हैं, इससे मेरे की सफरिंग खत्म होगी. एक लड़का है प्यार कर रहा है, एक लड़का है प्यार में उसको संतुष्टि नहीं मिल पा रही है, कुछ उसको सच्चा, किसी को सच्चा प्यार नहीं मिल रहा है, किसी को अकेलापन लग रहा है, वॉट एवर जो भी है सारी चीजें. The right solution is not going to be Shambhavi Mahamudra. It is going to release some rus inside you, but it is not going to make you intellectual because you are not exercising your brain. Meditation is not about exercising your brain. You need to understand something. That जब आप किसी चीज के पीछे पागल हो, दीवाने हो, और जब तक वो चीज आपको नहीं मिलती है, तब तक आप उस डिजायर से मुक्त नहीं हो सकते, और वो डिजायर वहां पे प्रॉब्लम बन रहा है. पर एक सिनेरियो है जहां पे डिजायर अचीव हो चुका है, और अब क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि उसके अंदर एक खालीपन है. अब वहां पे उसको, उस बंदे को, उस शांभवी महामुद्रा या जो भी, जितना भी आप जो भी कराते हो, वो जरूरत है. साथ ही साथ उसको ये जरूरत है कि वो आत्मज्ञान ले, नॉट इनर इंजीनियरिंग और नॉट शांभवी महामुद्रा, जस्ट लाइक दैट. ये दो चीजें होनी चाहिए. तो उससे क्या होगा कि अगर वो ढूंढ रहा है, तो अगर वो कुछ और पाने की चाह में अभी, तो उसका अभी भी डिजायर खत्म नहीं हुआ है. इलॉन मस्क को आप परसुएड नहीं कर सकते हो स्पिरिचुअलिटी के लिए. जेफ बेजोस को आप स्पिरिचुअलिटी के लिए परसुएड नहीं कर सकते हो. देयर आर पीपल इन दिस यूनिवर्स, इन दिस प्लैनेट, ऑन दिस प्लैनेट, who are not going to listen to you because they have the ultimate persuasion of the desire. They jump from one desire to another big desire, and then they repeat that samskara or cycle because they think that that is the ultimate thing, because there is happiness, there is the longing. They want to become grand. Somebody is a singer, he wants to become a better singer. He wants to, so he's into the race of grandiosity, of becoming a better singer, the best singer in this world. That is grand, the grandest singer, grand. And then that same singer wants to purchase things and gathers car, ghar, zameen, जायदाद, property. So he is now onto the pathway or the persuasion for the material possessions, and he wants to be grand in that. So there are two things. You want to become the best actor in the world, and then second thing is you want to achieve everything in this world materialistically. In both ways, दोनों चीजों में से एक चीज कॉमन है, वो है ग्रैंडियोसिटी. बड़ापन. तो आप अल्टीमेटली बाहर की तरफ से बड़ा होने की कोशिश कर रहे हो. यू हैव 500 करोड़ का मूवी, अब 1000 करोड़ आई, अब तुम 200 करोड़, अब 2000 करोड़, ऐसे. तो ये दुनिया
डिजायर से चलती है, वहां पे केमिकल रिलीज करने से कुछ नहीं होगा। जहां पे डिजायर के तरफ परसुएशन है, वहां पे केमिकल रिलीज करने से कुछ नहीं होगा। केमिकल कुछ काम नहीं करेगा वहां पे। अंदर रस जो निकल रहा है वहां काम नहीं करेगा। वो लोग खुश होंगे, उसके बाद फिर वही करने लग जाएंगे और फिर दुखी हो जाएंगे, क्योंकि वो दुखी इस वजह से नहीं है कि उनकी बॉडी की केमिस्ट्री खराब है। वो दुखी इस वजह से उनको जो चाहिए वो मिल नहीं रहा, उसकी वजह से कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा है, उसकी वजह से वो डिप्रेस्ड है। एक आदमी 100 करोड़ चाहता है, 90 करोड़ की लूट मच गई, 10 करोड़ बचे, कल फांसी लगा लेगा, क्योंकि जो आकांक्षा थी वो मिट गई। जिस तरीके की आकांक्षा थी लाइफ से कि ऐसी लाइफ होनी चाहिए, वो लाइफ नहीं है। 100 करोड़ होने चाहिए। वो बेचारा भाग रहा था 200 करोड़ की तरफ, लेकिन अब बचे 10 करोड़, फांसी लगा ली। Don't listen to me. Observe. I'm just helping out. Okay. I have figured out something in my life. I'm trying to share that with you. I have never ever told anybody to believe me. Don't believe me. Observe inside your system. What do you want? Ask yourself. Let's say everything you get right now, you will be happy ना. You will think हाँ भी ओके मुझे ये मिल जाए, मेरे घर वाले ऐसे हो जाए, ये हो जाए, एक घर हो जाए, एक मम्मी खुश हो जाए, मम्मी का कैंसर सही हो जाए, ये हो जाए, व्हाटएवर जो भी है, यू विल बी हैप्पी। दैट इज द अल्टीमेट इल्यूजन विच इज कॉल्ड माया। वंस यू कम टू दिस रियलाइजेशन दैट नथिंग इज गोइंग टू मेक यू हैप्पी, तब क्या होगा? बट नथिंग इज गोइंग टू मेक यू हैप्पी अगर मैं कहूं, सदगुरु कहें, संदीप कहें या कोई और कहें, क्या उस पर आपको विश्वास होगा? आप कहोगे हाँ होगा, क्योंकि हम आपके ऊपर भरोसा करते हैं। नहीं होगा, क्योंकि अब यहां पे पतंजलि के 3 प्रमाण एंटर करेंगे समझाने के लिए आपको। वो मैं पहले ही बता चुका हूं 3 प्रमाण क्या है, पर मैं एक बार फिर से बोल देता हूं जल्दी जल्दी में। थ्योरेटिकल बातें किसी ने करी, कहीं से कुछ पढ़ के, उसको बोलते हैं आगम प्रमाण। वेदांता से पढ़ा आपने, वीडियो देखा, पॉडकास्ट देखा, उसके बाद अगर आप उसको पढ़ के अनुमान लगा रहे हो, गैस वर्क कर रहे हो कि अच्छा ब्लैक होल में ये हो सकता है, ब्लैक होल में वो हो सकता है, वो है अनुमान लगाते हो। वो रियलिटी आपको दिखी नहीं है, लेकिन उस रियलिटी का आप अनुमान लगा रहे हो। ये होता है अनुमान प्रमाण। ये भी इतना सॉलिड नहीं होता है। तीसरा होता है प्रत्यक्ष, साक्षात्कार, सामने खड़ा हो गया आगे। तो एक डायरेक्टर जो एक हॉरर मूवी बना रहा है, वो पहले थ्योरी पढ़ता है कि भूत कैसा दिखता है। उस थ्योरी से वो अनुमान लगाता है कि ऐसा दिखता होगा, लेकिन इस अनुमान से भी पतंजलि ये कहते हैं कि एक्चुअली में, वास्तविकता में भूत कैसा दिखता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बिल्कुल अलग होगा। क्योंकि अनुमान तुम सो जो पढ़ा लिखा है उस पे, उसके बेस पे लगा, जो तुमने देखा है उसके बेस पे अनुमान लगा रहे हो। लेकिन वास्तविकता में अगर तुम्हें भूत दिख जाए और तुमने उसको पिक्चर में एडिट मार दिया, एनिमेट कर दिया, तो अब वो भूत एग्जैक्टली वैसा दिख रहा है जैसा वास्तविकता में है। इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। ये तीनों ही प्रमाण इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि यकीनियत यानी विश्वास इन तीनों पे आता है, लेकिन सबसे सॉलिड 150% लेवल पे आता है प्रत्यक्ष पे, अनुमान पे आता है 50% पे, और 10% पे आता है थ्योरी पे। ये दुनिया मूर्ख है। वेदांता पढ़ के सोच रही है हमें सत्य समझ में आ गया, लेकिन अंदर से डाउट चल रहा है, अंदर से स्केप्टिसिज्म है माइंड में, एक शक है कि क्या ये सच में ऐसा है? सच में हम शरीर नहीं है? सच में हम भगवान हैं? सच में मैं और चाइनीज, मैं और पाकिस्तानीज, मैं और यूरोपियंस एक हैं? अद्वैत मतलब सच में 2 नहीं है? क्या बात कर रहे हो? सामने तो दिख रहा है, तो प्रत्यक्ष कुछ और दिख रहा है। अद्वैत में कह दिया 2 नहीं है, अब गए कंफ्यूज हो गए। तो यकीन होगा नहीं कभी जिंदगी में, कभी जिंदगी में यकीन नहीं होगा।
बाहर बाहर से आप बता सकते हो कि मैं बहुत अद्वैत वेदांतिक हूं, बहुत बड़ा वेदांतन हूं, वेदांतिक हूं, व्हाटएवर जो भी टर्म होता है, वेदांतवादी हूं, वेदांतवाद मेरे अंदर बसा हुआ है, लेकिन अंदर से तुम्हें भी बेटा शक होगा। तो यकीनियत के 3 लेवल होते हैं। यकीन, उर्दू में एक वर्ड है यकीन, विश्वास, मान्यता। मान्यता जो बिलीव्स हैं, जितने भी बिलीव्स हैं वो सिर्फ थ्योरी पे बेस्ड है। क्या आपने भगवान देखा है? नहीं। पतंजलि क्या कह रहे हैं? जब तक तुम भगवान को देख नहीं लोगे तब तक तुम यकीन नहीं करोगे, चाहे तुम कितने ड्रामे कर लो मंदिरों में जा जाकर कि हम तो मानते हैं, हम तो मानते हैं, हमने फील किया है। तुमने फील किया है। फील तो कई लोग रात में करते हैं कि भैया रात में कोई बगल में खड़ा हमको देख रहा है। फील तो वो भी लोग रात में करते हैं। फील तो वो भी लोग करते हैं कि अभी आज हम बाहर जा रहे हैं, हिमाचल, एक्सीडेंट हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है। फील तो पता नहीं लोग क्या क्या करते रहते हैं। तो ये 3 प्रकार के लेवल्स हैं पतंजलि ने दिए योग सूत्र में। एक और एग्जांपल मैं हमेशा लेता हूं, तो ये कहां से उठा पूरा का पूरा, जो चाय वाला एग्जांपल जो मैं लेता हूं, एक्चुअली वो आपको मैं कई बार बता चुका हूं, बट अब नहीं बताऊंगा। अब आई थिंक इतने एग्जांपल्स काफी हैं, चलो बता देता हूं, क्योंकि कई महामूर्ख लोग सुन रहे होते हैं, उनको समझ में नहीं आता मुझे मुझे क्या बताऊं। तो सुनिए, आज तक मैंने चाय नहीं पी है और आप मेरे से आके चाय को एक्सप्लेन कर रहे हो, चाय का स्वाद गर्म होता है, चाय का स्वाद मीठा होता है, चाय का स्पर्श बहुत अच्छा होता है, चाय की महक ऐसी होती है, चाय का कलर ऐसा होता है, चाय छूने में ऐसी होती है, चाय देखने में ऐसी होती है। आपने पूरा चाय का हमको बता दिया, तो क्या इसको बताने से मुझे ये पता चल जाएगा कि चाय कैसी है, चाय का टेस्ट कैसा है? चाय वास्तविकता में मेरे एक्सपीरियंस में उतरेगी तभी तो पता चलेगा ना कि चाय का सत्य है क्या। नहीं तो मैं ये जो थ्योरीज बता रहे हो इससे मैं इमेजिन करूंगा चाय के बारे में, जो कि अनुमान प्रमाण है, और जो आप बता रहे हो चाय के बारे में वो आगम प्रमाण है। उस आगम प्रमाण से हम अनुमान लगाते हैं। लेकिन पतंजलि ये कहते हैं कि जब तक किसी चीज का प्रत्यक्ष नहीं होता, सामने नहीं दिखता है, तब तक उसका यकीन नहीं होता। आप कुछ महामूर्ख मेरे को क्या क्वेश्चन करते हैं, कहते हैं एक बात बताओ, तो आत्मा आप बोलते रहो, तो हम आत्मा है, तो क्या आत्मा वो बाहर निकाल के देख ले क्या आत्मा है? यही मेरे को पहले हुआ था 2018 में। मैंने सोचा आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कर लूंगा तो मुझे यकीन हो जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूं। वो एक बहुत बड़ा ट्रैप है। सटल को एक्सपीरियंस नहीं किया जा सकता, इंद्रियों से, आंतरिक आंखों से देखा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कई लोगों से क्वेश्चन पूछो, वो कहते हैं आप ओवर थिंकिंग करते हो, वो कहेंगे नहीं हम नहीं करते। लेकिन कई लोग कहते हैं हाँ हम करते हैं, हमारे अंदर ओवर थिंकिंग चलती रहती है। ये ऑब्जर्वेशन कहां से आ रही है? इसमें इंद्रियों का क्या रोल है? कोई रोल नहीं है। अरे भाई, आपने इंद्रियों से देखा ही नहीं, सेंसेस से देखा ही नहीं अपने माइंड में। आप अपने माइंड से ही दूसरे माइंड के भाग को देख रहे हो। अंदर आप देख रहे हो ना, कोई तो है अंदर जो देख रहा है। एक माइंड का दूसरा पार्ट है जो दूसरे माइंड को देख रहा है, वहां पे सेंसेस नहीं है। तो ये जो चीज है, क्या ये किसी आगम पे बेस्ड है, अनुमान पे बेस्ड है, या प्रत्यक्ष है कि आपको ओवर थिंकिंग हो रही है? बताओ। मैं मेडिटेशन करता हूं, मेरे को बहुत थॉट आते हैं, क्या ये इंद्रियों से देखा गया है? सोचो, इंद्रियां तो डिसीव करती हैं। नहीं, ये एक्चुअली आपने देखा है बैठ के, और आप अंदर ही बैठ के एक ब्रेन के दूसरे पार्ट से दूसरे पार्ट को देख रहे हो। समझ रहे हो? तो वो प्रत्यक्ष हो गया। अब इसमें यह कहां आ गया कि मैं पहले बाहर निकालूंगा अपने ब्रेन को और उसके बाद उसको एक कंप्यूटराइज्ड मशीन से लगाऊंगा, फिर देखूंगा कि मुझे ओवर थिंकिंग हो रही है कि नहीं हो रही। सटल को आंतरिक दृष्टि से देखा जाता है। अंदर ही अंदर जब आप ऑब्जर्व करते हो तो धीरे धीरे आपको दिखना चालू होता है कि आप आत्मा, आप शरीर नहीं हो, आप बुद्धि नहीं हो, मन नहीं हो। आपको समझ में आता है, धीरे धीरे समझ में आता है। आप बाहर क्वेश्चन भी करते हो, आप ये क्वेश्चन करते हो कि अगर सच में हम एक हैं, एक नहीं है, अगर हम सच में एक नहीं है, जो कि लोग कहते हैं कि मान लो शाहरुख खान अलग है, सलमान खान अलग है, हम अलग हैं, है ना? अगर सच में एक नहीं है, अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान एक नहीं है,
तो भैया एक बात बताओ, अमिताभ बच्चन बुखार में आते हैं उनको पैरासीटामोल देते हो, टॉम क्रूज बुखार लगता है उसको पैरासीटामोल, माइकल जैक्सन को बुखार लगे पैरासीटामोल, तो पैरासीटामोल क्यों दे रहे हो भैया? अलग अलग दवा भी होनी चाहिए, अलग दवा क्यों नहीं है? जो आदमी चाइना में चमगादड़ खा रहा है, अगर हम उसको दाल चावल खिलाएंगे क्या वो डाइजेस्ट नहीं होगा? या उसकी चमगादड़ खुराक है? आपको जो कई लोग कहेंगे हाँ चमगादड़ ही खुराक है, ऐसा नहीं है। दाल चावल खिलाओगे तो डाइजेस्ट होगा, वो अलग बात है, खाता नहीं। तो दाल चावल क्यों खिला रहे हो? हर आदमी का अलग अलग खुराक होनी चाहिए ना खाने पीने की भी, तो अगर अलग अलग है तो ये सब क्वेश्चंस करके आपको समझ में आता है, धीरे धीरे आपको समझ में आता है कि मैं ना शरीर हूं, ना ही मैं मन हूं। धीरे धीरे आपको समझ में आता है, ना ही मैं एनर्जीज हूं, क्योंकि धीरे धीरे समझ में आता है। तो वापस आते हैं टॉपिक पे, डिजायर जो है उससे सफरिंग क्रिएट होती है। अगर मैं आपसे कहूं, संदीप महेश्वरी सदगुरु आपसे कहें, या कोई भी आपसे कहे, कोई भी गुरु, कृष्णमूर्ति, ओशो, रामकृष्ण परमहंस, कोई भी आके कहे, कबीरदास, भगवान कृष्णा, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, व्हाटएवर जो भी है, कोई भी आके कहे, तो क्या आप कहोगे कि डिजायर में नहीं 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 हमें तो लगता है कि है ना? क्या सच में आपको लगता है कि सच्चा प्यार मिलने से कोई सुख नहीं मिलता? एक क्वेश्चन पूछता हूं आप लोगों से, क्या सच में आपको लगता है कि सक्सेसफुल होने से सुख का कोई कनेक्शन नहीं है? क्या सच में आपको लगता है या आपको डाउट है? डाउट है ना, बस यही समझ लो। क्योंकि जिस आदमी की गर्लफ्रेंड नहीं बनी, जिस आदमी को सच्चा प्यार नहीं हुआ, जिस आदमी को उसके मन की रानी नहीं मिली, सपनों का राजकुमार नहीं मिला, वो आदमी पूरी जिंदगी कितना भी बोलता रहे कंटेंट देख देख के कि इस दुनिया में सुख नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली वो क्रेव सच्चे प्यार की करेगा। चाहे तुम संदीप महेश्वरी खड़ा करो, चाहे सदगुरु खड़ा करो, चाहे पार्थ सिंह खड़ा करो, चाहे ओशो खड़ा करो, कोई भी खड़ा कर दो सामने लाके। तो अब सवाल यह आता है, डिजायर में सफरिंग है, पार्थ सिंह ने आके बोला सफरिंग नहीं है, तो अब क्या होगा? आपको यकीन नहीं होगा। अब यकीन करने के लिए कैसे यकीन करना है? पतंजलि के 3 लेवल्स पढ़ने हैं। वो 3 लेवल्स क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष करो। प्रत्यक्ष कैसे करोगे? डिजायर को एक्सप्रेस करो। देखो कैसे गुच्छा बन रहा है पूरे कनेक्शन का, कितने एंगल पॉइंट्स हैं। आप देखो, एक स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, आप देखो ऐसे होता है। तो डिजायर एक्सप्रेस करोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल 2016 में जब मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिला, तो उस वक्त वो एकदम ऐसी ही थी जैसा मैं चाहता था, और हमारा रिलेशनशिप चला 1-1.5-2 साल तक। दूसरे साल से मेरे को एक्साइटमेंट होना खत्म हो गया। मुझे लगता था यार इसके साथ ना, पहले मैं बीचेस जाता था, माउंटेन्स जाता था, ये करता था, वो करता था, सब कुछ सारी एक्टिविटीज करता था, लेकिन दूसरे साल से एक्साइटमेंट खत्म हो गया। क्योंकि पहला प्यार था तो एक्साइटमेंट जो है वो 2 साल तक चला। फिर दूसरा प्यार हुआ, वो चली गई। फिर एक और लड़की का से अट्रैक्ट हुआ। क्यों अट्रैक्ट हुआ? पहली बार में समझ में क्यों नहीं आया? क्योंकि पहली चीज तो ये कि हम ऑब्जर्व नहीं करते हैं, इसलिए समझ में नहीं आता। हमें लगता है कि अब वो मेमोरी से हटने लगता है जब 3-4 साल बीत जाते हैं बिना किसी रिलेशनशिप के। तो आपने देखा होगा, ऐसे आपके दोस्त हैं आसपास, कहते हैं अब तो भाई मैं किसी लड़की के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, और 6 महीने बाद किसी और से प्यार करने लगते हैं। वो यही है, उनको कभी समझ नहीं आता। ऐसे बाहर भी लोग हो रहे हैं, एक कार खरीद लेंगे, फिर एक और बड़ी कार खरीदेंगे, फिर एक और, फिर एक और, फिर कार से हटी जाएगा, फिर उनको जेट खरीदने हैं, फिर जेट से हट जाएगा, उनको रशियन चाहिए, नेपाली चाहिए, फिर वहाँ वैश्यागर्दी करेंगे, फिर वहाँ से ख़त्म हो जाएगा, फिर कुछ और परस्यूट करने लगेंगे। कुछ ना कुछ इनका अलग ही कैटेगरी चेंज हो जाती है पूरी। तो अल्टीमेटली जाते वो भौतिक की तरफ ही है। पर वो एक भी चीज़ अगर ढंग से ऑब्जर्व कर ले तो डिजायर में कुछ नहीं है। पर अब सदगुरु क्या कह रहे हैं? अब किसी बच्चे ने सदगुरु को सुना, अब मान लो लेट्स एग्जांपल, एक लड़का बैठा हुआ है, उसको गर्लफ्रेंड चाहिए, उसको गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही। अब उसने इनको सुना, वो चला गया शांभवी महामुद्रा करने आश्रम में, पैसे दे आया बहुत सारे, 12-13 हज़ार, 16 हज़ार, जो भी लगता है, 30 हज़ार रुपए। उसके बाद आके वो फिर परेशान होगा। क्यों? क्योंकि उसने पहला डिजायर एक्सप्रेस नहीं किया और सोल्यूशन कोई और था, सोल्यूशन कुछ और, वो सोल्यूशन किसी और चीज के लिए है।
ये जो शांभवी महामुद्रा, इनर इंजीनियरिंग और ये जो सदगुरु की जो बातें हैं ना कि सब कुछ सारी ह्यूमैनिटी का, सारी सफरिंग का एक सोल्यूशन नहीं है, वो सोल्यूशन किसी और सफरिंग का है। वो सफरिंग है केमिकल सफरिंग। जब आप सब कुछ अचीव कर लेते हो और आपको समझ में आ जाता है कि अब इसमें कुछ नहीं है या अकेलापन है, लेकिन आपको ये समझ में आ रहा है अकेलापन लड़की से खत्म नहीं हो रहा, अकेलापन मेरे पैशन, मेरा जो म्यूजिक है उससे खत्म नहीं हो रहा है, मैंने इतनी बंदियों का साथ निभाया, मेरी सपनों की राजकुमार रानी मेरे को मिली, राजकुमार क्यों मिले, गे थोड़ी हूँ, रानी मिली, तो वो उससे नहीं हो रहा है, तो आपको समझ में आएगा धीरे धीरे कि अब रास्ता है क्या, और अगर एक और रास्ता है तो उस पर चलोगे आप। लेकिन उस रास्ते पे कब चलोगे आप? तभी तो चलोगे जब पहला और दूसरा रास्ता आपको समझ में आएगा यहाँ कुछ नहीं है। यानी पहले रास्ते पे चल चुके हो, दूसरे रास्ते पे चल चुके हो। लेकिन कई लोग हैं वो हर रास्ते पे चल चुके पर उनको समझ नहीं आता, क्योंकि वो ऑब्जर्वेटिंग मोड में नहीं है, वो ऑब्जर्व नहीं कर रहे होते, वो कभी ये नहीं सोचते हैं कि मुझे अल्टीमेट कंफर्ट कैसे मिले। वो डेट पे चलते हैं, डेट पे ये उधार लेके चल रहे हैं। इनको लगता है कि यहां से अच्छा एक काम करते हैं, अब इसके साथ अफेयर करते हैं, तो उससे थोड़ा सा ले लिया, फिर उसके बाद इधर इस पे जाते हैं, फिर वहां से उधार ले लिया। तो ऐसे करते करते उधार ही खाता है ये पूरा। ये भौतिक जगत से उधार लेते रहते हैं, उधार पे चलते हैं, और ये बस सरवाइव कर रहे हैं। जैसे एक बैसाखी के सहारे एक अपंग व्यक्ति एक बैसाखी के सहारे चल लेता है, चल तो फिर भी वो ले रहा है, चलेगा फिर भी आपका, लेकिन रो रो के चलोगे, तकलीफ ले लेके चलोगे, अनकंफर्टेबली चलोगे। तो उनके लिए वही सही है। तो वो इसी वजह से नहीं करते, जो लोग नहीं करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहां होता है कि भाई एक अमीर आदमी, उसने सब कुछ करके देख लिया, उसको क्यों नहीं समझ में आ रहा? अगर आपकी बात सही है तो क्योंकि उसने क्वेश्चन नहीं किया है, उसको अल्टीमेट कंफर्ट नहीं चाहिए। तो इट्स नॉट गोइंग टू एक्चुअली वर्क, द शांभवी महामुद्रा और because that is the solution for a different kind of situation when you have in your life, when you have actually gotten rid, sorry for my grammar, gotten rid, मैं बहुत दिनों से इंग्लिश नहीं बोला हूं आज मैं बहुत झाड़ रहा हूं। होता क्या इंग्लिश में, इफ यू डोंट प्रैक्टिस ना, इट लाइक हो जाता है। सो आई हैड गुड प्रैक्टिस, बट संस्कृत में ज़्यादा चला गया बीच में और हिंदी में ज़्यादा चला गया। तो although I'm just talking like immature, but I still give it a try. So क्योंकि अभी he is not he's not able to remove that first baggage. What is that baggage? That baggage of desires. वंस लाइक मेरे साथ 23 की उम्र में ये हो कि मैं सब कुछ करके देख चुका था, फिर मुझे समझ में आया, है ना। ऐसा नहीं था कि गर्लफ्रेंड नहीं बनाया, रिलेशनशिप में नहीं किया, बट ही इज गिविंग आउट अ डिफरेंट सोल्यूशन। इट्स नॉट गोइंग टू वर्क बिकॉज इट विल वर्क फॉर सर्टन पीपल, बट इट्स नॉट गोइंग टू वर्क फॉर एवरीबडी, बिकॉज यू आर अल्टीमेटली रिप्लेसिंग द सच्चा प्यार फ्रॉम इनर इंजीनियरिंग, और सच्चे प्यार को इनर इंजीनियरिंग के साथ रिप्लेस कर रहे हो आप। यू वॉन्ट सच्चा प्यार ओनली, नेवर हैव एक्सपीरियंस्ड इट, अ गर्लफ्रेंड एक्सपीरियंस, नेवर टेकन, बट यू आर रिप्लेसिंग बिकॉज नाउ यू डोंट हैव द ऑप्शन. So let's take an example of this lady in my known. She is actually a 35-year-old lady, and she wants a baby, but now she's into yoga, and she wants a husband also because she's a divorcee. उसको second शादी भी करनी है. But she is replacing yoga, and she is telling the entire world, especially to me, that yoga. Now I'm into yoga. Now I'm into spirituality. Now I am into Vedanta. Now I am going to be because. But अंदर से क्या चाहिए? अंदर से क्या चाहिए आपको? अंदर से आपको दूसरा हस्बैंड चाहिए, एक बच्चा चाहिए. वो डिजायर निकला ही नहीं बच्चा पैदा करने का. वो कैसे निकलेगा? एक बच्चा पैदा करोगे, उसको ऑब्जर्व करोगे, तब तो निकलेगा. एटलीस्ट एक तो बच्चा पैदा करो. तो वो इनर इंजीनियरिंग इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर एवरीबॉडी.
And don't take my word. I'm not claiming anything. Go for your experience. Write down in the comment कि पार्थ आप सही कह रहे हो. ये मैंने खुद देखा है कि सिर्फ मेडिटेशन से कुछ नहीं होता है. एक्चुअली 3 चीजें हैं: ज्ञान, ध्यान और पूर्ति. ध्यान एक डिफरेंट काइंड ऑफ सोल्यूशन है. जब आपको इस समझ में आता है कि आपने सब कुछ ट्राई कर लिया, तब आप ध्यान कर सकते हो. और आप चाहो तो डिजायर को परस्यू करते वक्त भी ध्यान कर सकते हो, जस्ट टू मेक एवरीथिंग श्योर. बिकॉज ध्यान सिर्फ चित्त की वृत्तियां कम करता है. जो ओवर थिंकिंग स्टेट है, जो स्ट्रेसफुल स्टेट है, जो फोकस है, जो ध्यान है आपका, जो बेसिकली जो अटेंशन है, उसको बढ़ाता है. ये ध्यान काम करता है. लेकिन उस अटेंशन को जब आ जाती है आपके हाथ में, वो अटेंशन जब बारीक हो जाती है, एक पेंसिल के समान, शार्पनर आपने लगा दिया, पेंसिल आपकी लगी, तो शार्पनर जो है वो ध्यान है, और पेंसिल जो है वो मोटी थी और आपने उसको शार्प किया. अब वो पेंसिल लिखने लायक हो गई. तो अब वो पेंसिल से लिखा क्या जा रहा है, कंटेंट क्या है? क्या उस पेंसिल को शार्प करा जा रहा है एंटरप्रेन्योरशिप में सक्सेसफुल होने के लिए? क्या इस पेंसिल को शार्प किया जा रहा है क्रिएटिव फील्ड में कुछ क्रिएट करने के लिए, जैसे म्यूजिक वीडियो हो गया, या एक्टिंग हो गया, या सिंगिंग हो गया, कंपोजिशन हो गया, कुछ भी हो गया, म्यूजिक कंपोजिशन हो गया, म्यूजिक वीडियो हो गया, फिल्म हो गया? क्या उस पेंसिल को यूज किया जा रहा है पोर्नोग्राफी लिखने के लिए? उसमें भी क्रिएटिविटी होती है. क्या उस पेंसिल को यूज किया जा रहा है, उस पेंसिल की निब को जो शार्प है, वो यूज किया जा रहा है सच्चे प्यार को ढूंढने के लिए? तो जो पेंसिल से लिखा जा रहा है, वो जो कंटेंट है, वो आत्मज्ञान तभी लिखेगा जब उस पेंसिल को ये समझ में आएगा कि बाकी जो भी लिखा गया है अभी तक, जो भी मैं लिख रही हूं, जो भी लिख रहा हूं एज अ पेंसिल, उसमें सुख नहीं है. क्योंकि मैंने सब करके देख लिया है, मैंने सारे भोग करके देख लिए हैं. इस रियलाइजेशन पे आदमी आता है और एक्सेप्ट करता है, स्वीकारता है कि हाँ, बाहर कुछ नहीं है. ये नहीं कि मैंने बोला तो हाँ बोल दिया. कि एक्चुअली आपको लग रहा है कि आपकी पत्नी में कोई सुख नहीं है. और वो कैसे होगा? पत्नी को लिखो, गो एंड फाइंड अ पत्नी, तो आपको पता चलेगा पत्नी में सुख नहीं. डोंट सप्रेस योर डिजायर्स. देन आपको समझ में आता है कि ओके, अब मुझे आत्मज्ञान करना है. लेकिन आत्मज्ञान करने के लिए, आत्मज्ञान समझने के लिए मेरे पास इतने अच्छे अटेंशन नहीं है. तो ध्यान क्या करेगा? उस पेंसिल को और शार्प कर देगा. फिर आपने शार्पनर लगाया, वो शार्पनर लगाया, और शार्पनर ध्यान की तरह है, उसको और शार्प कर दिया. तो और जब आप शार्प किया तो और पतली राइटिंग होने लगी. जितनी पतली राइटिंग होगी उतनी अच्छी हैंड राइटिंग होगी, यानी उतना अच्छा अटेंशन होगा. तो अल्टीमेटली ध्यान का जो रोल है वो सिर्फ अटेंशन को बारीक करना है, अटेंशन स्पैन को बढ़ाना है, और जो ओवर थिंकिंग स्टेट है, स्ट्रेस स्टेट है, मेंटल स्टेट है, उसको गिराना है, और उस परम रस को, आत्मरस को रिलीज करना है. लेकिन वो आत्मरस तब काम करेगा जब बाहर आपने टेंशन ना हो रही हो आपको कि बाहर ये नहीं मिला, बाहर वो नहीं मिला. क्योंकि स्टिमुलेशन तो बाहर से हो रहा है ना. आपने कहा कि मुझे बाहर ये नहीं मिला, तो आपको स्टिमुलेशन हो रहा है अंदर से कि यार अब वो स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है. चाहे कितना भी आप अंदर से परम रस रिलीज कर दो, आत्मरस रिलीज कर दो, शांभवी महामुद्रा कर लो, इनर इंजीनियरिंग कर लो, विच इज क्रिएटिंग दैट केमिकल इनसाइड. That chemical is not going to work because there is a counter chemical, which is cortisol, which is releasing because you have not achieved the desire, which is creating the desire wants an expression. That is why the birth is happening. The birth is ultimately happening because of desire only, and you are suppressing the desire. Are you a foolish guy? No. Then there comes the question. Then everything you do, you do dhyana, you do gyan, and then you do purti of desire. Everything you start with purti, and then you do dhyana, and then you do atmagyan. These 3 things when you do, then there is 4th portal, चौथा पोर्टल खुलता है. वो तो लोगों को पता ही नहीं है कि अब आप मुक्त हो गए डिजायर से, वहां से आपको मोक्ष प्राप्त हो गया. आप मोक्ष प्राप्त हो गया लोनलीनेस से. आपको एग्जिस्टेंस में छोटे लगते थे, अकेलापन लगता था, अंदर से बहुत घुटन होती थी, आकांक्षाएं थी लोगों से, अपनी जिंदगी से आकांक्षाएं थी.
आकांक्षाएं थी, एक्सपेक्टेशन थी, अपेक्षाएं थी, होप थी अपनी जिंदगी, वो होप सब खत्म हो गई। किसी से कुछ नहीं चाहिए, अपनी जिंदगी से कुछ नहीं चाहिए, इनफैक्ट ये जीवन भी नहीं चाहिए। यहां तक आप पहुंच गए, सब कुछ हो गया। अब चौथा पोर्टल खुलता है। ये चौथा पोर्टल है कि अब सब कुछ करने के बाद टाइम तो बचेगा, अब टाइम का क्या करोगे बाकी भाई सुबह उठे, आपको अचीव हो गया, आपने मेहनत कर डाली पिछले 10 साल से, अब ये तो कर रहे थे, अब क्या हुआ 11वें साल से क्या होगा? टाइम ही नहीं है। मतलब टाइम बहुत ही टाइम है, क्योंकि अब कुछ करने के लिए नहीं। पहले तो भैया कहीं कुछ करते रहते थे कि भाई यहां लड़की ढूंढना है, वहां उससे बात करनी है, सब अब तो सब खत्म हो गया। करके देख लिया आपने, कुछ नहीं है। फिर आत्मज्ञान मिल गया आपको, अब आपको कुछ चाहिए नहीं। क्यों? क्योंकि अब आपको इतना बड़ा कुछ मिल चुका है कि जो डिजायर है वो छोटा लगने लगता है। आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट हो गई है, पहचान चेंज हो गई कि आप कौन हैं। जैसे पहचान ये होती है कि मैं भगवान हूं, मैंने इस क्रिएशन को बनाया है, मतलब मेरे से बना है, ये नहीं कहना मुझे मैंने बनाया है, मेरे से ये क्रिएशन बनी है। तो आपको समझ में आता है ये सब तो छोटी छोटी चीजें, जो ये घर बना लो और समाज के जो प्रेशर्स हैं, समाज के डिजायर का प्रेशर है, खुद के डिजायर का प्रेशर, अल्टीमेटली समाज के डिजायर का प्रेशर है। तो समाज के डिजायर का प्रेशर है, खुद के अपने डिजायर का प्रेशर, और डिजायर खत्म हो गया, प्रेशर खत्म हो गया। अब आप चौथे दिन उठोगे, आप एक दिन उठोगे, आप कहोगे यार एक 10 साल अपने, एक या 11वें साल अब उठे, आपने कहा अब टाइम ही टाइम है, अब क्या करें? अब यहां से एक नया पोर्टल खुलता है। ये तब तक नहीं समझ में आएगा तुम्हें, यहां जितने भी सब्सक्राइबर है यहां नहीं पहुंचे हो कोई, क्योंकि आपको अभी भी कहीं ना कहीं अंदर से डिजायर है वो पूरा करना है। वही आप पहला लेवल नहीं क्लियर कर पा रहे हो। दूसरा लेवल है कि आपकी पहचान बदलनी है आपको, वो नहीं क्लियर कर रहे हो अभी, वो भी क्लियर नहीं है, या है भी तो चलो ठीक है, आपको सब कुछ होगा। चौथा पोर्टल पता है क्या है? चौथा पोर्टल ये है कि आप सुबह उठोगे, आपके पास कुछ करने के लिए नहीं, फिर आपको पता चलेगा ऊर्जा यानी जो एनर्जी है वो तो भैया एक्सप्रेस कराएगी आपसे। वो या तो नीचे से निकलेगी या ऊपर से निकलेगी। तो आप देखोगे, पहले दिन उठोगे, अंगड़ाइयां लोगे, अब मैं मोक्ष प्राप्त हो गया मुझे, जबकि आप देख रहे हो आपके पास शरीर और इंद्रियां और मन और ऊर्जा यानी प्राण सब कुछ अभी है। आपने सिर्फ मेंटल कंटेंट क्लीन किया है, साइकोलॉजिकल जो सर्च थी वो खत्म हो गई है हर चीज की, पर एनर्जी तो अभी भी है। अब वो एनर्जी आपसे, अगर आपने इसको यूज नहीं किया तो गलत काम करवाने लगेगी। तो आपको समझ में आएगा कि ये भी सोल्यूशन नहीं था। आपको पता है उसके बाद क्या समझ में आएगा? जब मेरे साथ ये हुआ 2020 में, जब मैं गया था मणिपाल कर्नाटका में, वहां रहा 6 महीने, जंगलों में रहा मैं, जंगल ही समझ लो, मतलब जस्ट एक 10 किलोमीटर क्रॉस करो वेस्टर्न घाट्स, और वहां पे बाघ और ये चीता और ये लेपर्ड्स वगैरह चालू। तो 10 किलोमीटर जंगल के बाहर था मैं, बस 10 क्या 5-6 किलोमीटर। और मैं सोचता था अब यही जिंदगी है, और यहीं पे कई लोग फंसे हुए हैं अभी एक मेरे फ्रेंड है, उनसे मतलब फ्रेंड क्या है, जान पहचान में है, उनसे मेरी बात हुई, तो ये वो ट्रैवल कर रहे हैं, भारत भ्रमण करते हैं। तो कह रहे हैं कि हमने हिमालय में बैठे थे, फिर हम ऋषिकेश आ गए, फिर हम गोवा चले गए, फिर हम केरला चले गए, फिर हम यहाँ चले गए, फिर हम वहां चले गए, फिर हम यहाँ चले गए, फिर हम वहां चले गए। मैं एक जगह नहीं रह सकता भैया। तो मैंने कहा पहले तो ट्रैवलिंग का जो डिजायर है, या आपके अंदर जो सच्चे प्यार का डिजायर है, वो मैं देख पा रहा हूं कि आपको कंपेनियनशिप चाहिए, आपको प्यार चाहिए, आपको दोस्ती चाहिए, वो भी मैं देख पा रहा हूं, आप मानो चाहे ना मानो। और दूसरी चीज आपने कहा ट्रैवल इज द आंसर, आप कह रहे हो, तो आप अभी पहले लेवल पे ही हो। आत्मज्ञान और ध्यान तो आएगा ही नहीं अभी यहां पे भैया। जब डिजायर ही प्रॉब्लम है तो डिजायर पे अटैक करो ना, क्यों ध्यान कर रहे हो बैठ के? ध्यान से डिजायर थोड़ी खत्म हो जाएगा। तो मैंने कहा आप अभी नहीं, चौथे पोर्टल पे कैसे पहुंचोगे? चौथा पोर्टल क्या है? और यहां पे संदीप महेश्वरी पहुंच चुके हैं, क्योंकि मैं उनकी बातों से कई बार ऑब्जर्व कर चुका हूं उनको। वो ये है कि सब कुछ करने के बाद आपके पास खाली टाइम बचता है। अब खाली टाइम में आप क्या करोगे? कुछ तो पकड़ना पड़ेगा, या तो बिजनेस ग्रो करो, लेकिन फिर वहां से वासना बनने लगेगी। तो वो जितना आप कर रहे हो उतना कर रहे हो, लेकिन कुछ और करना पड़ेगा। वो है अपने मन की लेयरों को हटा हटा के देखना चालू करो।
ये सबसे अच्छा काम है। आप कुछ तो काम पकड़ोगे ना, या तो एंटरप्रेन्योरशिप ही करते रहो, कुछ तो निकालते हो, लेकिन फिर आप कहोगे यार इसमें वो नहीं है, मतलब फिर से मैं इसमें कैद हो रहा हूं। तो आपका सारी एनर्जी लग जाएगी ये ढूंढने में कि आज मैंने क्या सीखा अपने माइंड से, और आप नई नई लेयर खोलते जाओगे। लॉज ऑफ यूनिवर्सेस जो डिस्कवर किए मैंने, वो यहीं से हो रहे हैं। लॉ ऑफ डुअलिटी के ऊपर इतनी रिसर्च चल रही है, वो इसी वजह से हो रही है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल क्या हो सकता है? अच्छा, और एक और उदाहरण क्या हो सकता है? अच्छा, लॉ ऑफ सेंटर पॉइंट क्या होता है? लॉ ऑफ लेयरिंग में और क्या हो सकता है? लॉ ऑफ इंटैंगलमेंट में और क्या हो सकता है? लॉ ऑफ सर्कुलाइजेशन या लूप में और क्या क्या हो सकता है? लॉ ऑफ चेंज में और क्या हो सकता है? लॉ ऑफ गिव एंड टेक में क्या? लॉ ऑफ ट्रांजैक्शन जो है उसमें क्या क्या और हो सकता है? क्यों है? क्या इसको गलत तरीके से साबित किया जा सकता है? रीबर्थ क्या होता है? री इनकारनेशन की क्या गुत्थी है? इन सब में दिमाग लगता जाएगा, और साथ ही साथ इसमें भी लगा रहेगा आत्मज्ञान में। ऐसा नहीं है नहीं लगा रहेगा। तो माइंड की एक एक लेयर जो है पेचकस से खोल के आप देखते रहोगे, एक एक पेज खोलोगे, पढ़ोगे, स्टडी करोगे, क्योंकि अब ऊर्जा लगेगी कहां? ऊर्जा और कहां लगाओगे? आप कहोगे नहीं हम तो कहीं बैठे रहेंगे। अरे बैठे रहोगे तो खत्म, पोर्नोग्राफी देखने लगोगे। मैं उस लेवल पे पहुंच चुका, मैं बात कर रहा हूं इसी वजह से आपसे। तो क्या अगर हम ये करते रहे तो क्या हम पोर्नोग्राफी बिल्कुल नहीं देखेंगे? नहीं, देखोगे, मैस्टरबेट भी करोगे, सेक्स भी करोगे, सब कुछ करोगे, लेकिन 100 में से 90% ऊपर के काम करोगे, 10% जो है जरूरतें हैं वो पूरी करोगे। नहीं भी करोगे तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन कर लोगे तो ठीक है, बॉडी रिलैक्स हो जाती है, एक ठीक है। लेकिन एक चीज है कि आप उस पर डिपेंडेंट हो, आपकी जिंदगी में इतना परेशानी है कि उस परेशानी से भागने के लिए आप मैस्टरबेट कर रहे हो, आप हस्तमैथुन कर रहे हो, आप सेक्स कर रहे हो, आप रशियन, नेपाली और ये वो जो वैश्या गर्दी कर रहे हो। तो कैसे करोगे? यू आर डिपेंडेंट ऑन समथिंग एंड यू आर जस्ट यूजिंग इट एज अ हिंट, using it a hint of or a pinch of मसाला, और नमक में कूद पड़ोगे, या नमक लेकर कूद पड़ोगे, या मसाला थोड़ा सा डालोगे, या पूरा डाल दोगे। तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं। तो शांभवी महामुद्रा जो है और ये सारी चीजें ना, एक तरीके, मतलब जो लोग वहां गए हुए हैं ना आश्रम में, उनको काम कराया जाता है वहां पे सदगुरु के आश्रम में। मैं कह रहा हूं कि काम, वो ऊर्जा आप निकाल रहे हो काम करने में, लेकिन अगर आपसे हम कुछ भी पूछ लें तो आप उठा के जाओगे सदगुरु से पूछने पहले कि भाई चल बता लॉ ऑफ डुअलिटी क्या होती है। 1 मिनट मैं सदगुरु से पूछ के आता हूं। तो यही चीज ये नहीं होनी ना, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये, मतलब आप ये तो गुलाम हो गए फिर सब लोग मेरे या उनके या किसी और के। तो गुलामियत में जीना है या खुद स्वतंत्र होना है आपको? आप चाहते हो कि खुद आप लीडर बनो या फिर आप गुलामी करो? तो ये चक्कर है। वहां पे उनको पता है कुकिंग कैसे करनी है, बेड कैसे सही करना है, लोगों को खाना कैसे परोसना, लंगड़ कैसे खिलाना है, वो सब पता उनको। क्या यही है जीवन कि एक गुरु से के पास जाओ और साधना करो और साधना ही करते रहो? साधना अंत है, और साधना के बाद अगर एक लेवल ऊपर भी जाओ, आत्मज्ञान ले लो, उससे क्या आपकी आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी? मेरी पहचान ये है, ठीक है, पहचान बदल गई, अब क्या करोगे? अभी भी एनर्जी कहां लगाओगे? अपने आप को इवॉल्व करोगे कि आज मुझे ये नहीं पता था ब्रेन के बारे में, बॉडी के बारे में, कि 2023 में मैं ऐसा था और 2025 में मुझे ये चीजें पता है। और इवोल्यूशन सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि आप सेल्फ एक्सपीरियंस कर रहे हो। जैसे मैं इवॉल्व होता हूं तो मैं सबको पढ़ता हूं, मैं सबको सुनता हूं, मैं सबसे सीखता हूं। सदगुरु से मैंने बहुत कुछ सीखा है, संदीप से भी बहुत कुछ सीखा है। जहां मुझे लगा कि यहां बोलना चाहिए कि मैंने बोला, क्योंकि हो सकता है कि वो सुने और वो भी मेरे से सीख रहे हो। लेकिन मैंने इतना ऑब्जर्व किया, ये गुरुज आपस में एक दूसरे को सुनते तक नहीं है। इनफैक्ट मैंने आचार्य को भी सुन रखा है, आचार्य प्रशांत को मैंने सुन रखा है, 30-40% उनकी बातें सही होती हैं,
जो नहीं होती हैं वो लोग कहते हैं समझ नहीं आया, कुछ नहीं है, कभी सामने बैठा देना तो मैं क्वेश्चन कर लूंगा, समझ में क्या नहीं आया। जब मैं आचार्य प्रशांत को सुनता हूं तो मेरे साथ सीन क्या होता है ना, मैं उनको सुनता तो हूं लेकिन मैं उनकी बातें भी एग्री करता हूं, लेकिन कई बातें फर्दर क्वेश्चनिंग करी जा सकती है उस पर। तो मुझे लगता है कि अभी ये आदमी वहां तक नहीं पहुंचा है जहां तक पहुंचना चाहिए। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मतलब क्लियर आंसर्स नहीं है, कि पक्षपात इज नॉट द आंसर फॉर एवरीथिंग, कि औरत ऐसी होती है या आदमी पुरुष ऐसा होता है, या औरत की गलती है, पुरुष की गलती है, या कुछ भी, मतलब कोई भी बात हो रही है तो उसका एक तर्क निकाल दिया, उस तर्क का वितर्क दिया जा सकता है। जब तक उस तर्क का वितर्क ना बने तब तुम मान सकते हो कि हाँ ये अब एंड ऑफ क्वेश्चनिंग है। बट क्वेश्चनिंग की कहीं बात नहीं होती, ऑब्जर्वेशन की कहीं बात नहीं होती है, साधना की भी बात नहीं होती है। किस चीज से आप अपने भारतवासी जो लौंडे आपको सुन रहे हैं, आप कैसे किसी को आजाद करोगे? ये कि मांस मच्छी मत खाओ, तो एक आदमी ने मांस मच्छी छोड़ दिया, तो कौन सा बहुत बड़ा काम कर दिया, मांस मच्छी छोड़ दिया? तो ये कोई अचीवमेंट है कि आपने मांस मच्छी छोड़ दिया? ना आप अपने डिजायर छोड़ पा रहे हो, ना आप ये समझ पा रहे हो कि आप कौन हो, ना आप आंतरिक जो लेयर्स हैं उसके बारे में कभी बात करते हो। तो आपने किया क्या मांस मच्छी के अलावा, छोड़ने के अलावा? हिंदुत्व कर रहे हो ठीक है, लेकिन जो बोला गया भगवत गीता में वो क्या सच में देख पा रहे हो? तो ये सारी जो चीजें हैं ना, ये जो गुरु है ना, वो अपने तर्क को सबसे ऊपर रखते हैं और उनको बुरा लग जाता है जब कोई उनको वितर्क देता है, जबकि उनको बुरा नहीं लगना चाहिए। वो भी अपने चैनल से चाहे तो वितर्क दे सकते हैं, नहीं देना चाहे मत दें, लेकिन बुरा ना माने, क्योंकि हर एक भारतवासी को, हर एक धरतीवासी को इनफैक्ट हक है तर्क रखने का। आप तर्क रख रहे हो, आपने नीचे कमेंट कर दिया नहीं सर मैं आपकी बात से एग्री नहीं करता हूं, ये कोई तर्क नहीं होता है। तर्क ये होता है कि आपने ये बोला, मुझे लगता है कि ये होता है, अब उस पर मेरा प्रतिक्रिया आएगी या नहीं आएगी उस पर आपका हक नहीं है। मैं चाहूं तो प्रतिक्रिया दूं, नहीं चाहूं तो मत दूं। मैं क्यों दूं प्रतिक्रिया आपको? आपको कौन कह रहा प्रतिक्रिया आप मेरे से मांग रहे हो? आपने क्वेश्चन, आपने तर्क दे दिया, वो ठीक है। वैसे ही जैसे मैं संदीप को बोलता हूं, सदगुरु को बोलता हूं, आचार्य को बोलता हूं, मैं तो कभी नहीं कहता कि किसी को बिलीव करो। मैं ये कहता हूं किसी को मत बिलीव करो, मेरे को बिलीव मत करो। मैं कह रहा हूं अपने एक्सपीरियंस को देखो, क्योंकि पतंजलि के 3 लेयर्स हैं और उन 3 लेयर्स में प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे ऊपर है, नहीं तो यकीनियत कभी नहीं आएगी। ये बात याद रखना हमेशा। चाहे कितने भी यूट्यूब गुरु को सुनते रहो, मांस मच्छी छोड़ दोगे कि ये होता है, नर्क में काटे जाओगे यार, जो भी नहीं भी काटे जाओगे तो उनको बहुत तड़पाया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। बात सही है, एकदम सही है। जानवरों के साथ जो दुराचार किया जाता है या दुष्ट स्वभाव रखा जाता है, उसके पीछे मैं पूरी अगेंस्ट हूं। मैं भी कहता हूं किसी को नहीं खाना चाहिए, लेकिन बोलने से क्या होता है? खा तो तब भी सब रहे हैं। सबको पता है नॉनवेज खाना बुरा है, लेकिन फिर भी लोग खा रहे हैं। पानी काफी जाता है उसमें, मुझे सब पता है कि एक चिकन को अन्न देने में कितना सारा पैसा लग जाता है, उसको फिर चिकन वो बिकता है इतने में है, ये वॉटेवर जो भी है, मुझे पता है सब कुछ, कि सब यूटिलाइजेशंस हो रहे हैं गलत। जो हमारे सोर्स हैं फूड के, और पानी हमारा वेस्ट होता है सारा चिकन पे खाने पीने में, ये भी मुझे पता है। मैं इस पे बात ही नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि आप तभी अपनी प्रवृत्तियों को चेंज कर पाओगे जब आपके अंदर वो परम रस जो है वो रिलीज होगा। उस परम रस को कैसे रिलीज करना है उसकी कोई बात नहीं होती। करते हैं सदगुरु, लेकिन उन्होंने वहीं पर करके छोड़ दिया। और मैंने सबको सुना है, लेकिन ये आपस में किसी को नहीं सुनता कोई। कितनी अच्छी ऑब्जर्वेशन है देखो, कोई नहीं सुनता। सुनेंगे भी तो बुराइयां करेंगे दूसरे की। वो आचार्य ने सदगुरु को बोल दिया, संदीप को बोल दिया, फिर संदीप ने आचार्य को बोल दिया, सदगुरु को बोल दिया। बोला है सदगुरु किसी को कुछ नहीं बोलते, ये भी मैं जानता हूं। किसी के पॉडकास्ट में भी नहीं जानते, जब तक वो जो रोगन और रणवीर इलाहाबादिया के पॉडकास्ट में गए थे, वो भी सब मैं जानता हूं।
सब प्रतिज्ञा करते हैं कि उन्होंने ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया, यह बोल दिया, वो बोल दिया। तो सबको तर्क रखने का हक है, तर्क रखो आप, लेकिन तर्क रखने से ना आपको साबित होगा ना मेरे को साबित होगा। यकीन नहीं होगा आपको। यकीन पता है कब होगा? जब आप उसको खुद या तो अपने सेंसेस के थ्रू ऑब्जर्व करेंगे, और नहीं तो आंतरिक है तो अंदर की दृष्टि से ऑब्जर्व करेंगे। कि अगर मैं आपसे ये कह दूं कि मेडिटेशन करते ही ध्यान लग जाता है, तो क्या आप मानोगे? नहीं मानोगे। आप कहोगे नहीं, ओवर थिंकिंग होती है सर। अब कौन सा माइकल लाल आके बदल सकता है इस थॉट को कि मेडिटेशन जब शुरू में करते हैं तो ओवर थिंकिंग नहीं होती? कोई बदल सकता है आपको? नहीं बदल सकता। क्यों? क्योंकि आपने प्रत्यक्ष किया है। लेकिन इसको बदला जा सकता है कि भूत प्रेत होते कि नहीं होते। ये सबके अंदर ऑल्टरनेटिव होता है, एक फ्लैक्चुएट होता रहता है सबके अंदर। को बोलता नहीं, को बोलता है, जंप लेते हैं सब। क्यों? क्योंकि देखा नहीं। ऐसे ही लोग बोलते हैं कि क्वांटम इंटैंगलमेंट गलत है, कोई कहता है ब्लैक होल्स नहीं होते, कुछ लोग कहते हैं फ्लैट अर्थ होती है, वो पिक्चर्स जो है वो फेक है। क्योंकि प्रत्यक्ष नहीं हुआ है। फ्लैट अर्थ थ्योरी जो है वो एक्चुअली प्रत्यक्ष, उनको सच में प्रत्यक्ष, उनको लेके जाओ स्पेस में। बट हमें प्रत्यक्ष नहीं हुआ है, लेकिन हमें ये पता है। क्यों? क्योंकि हमने सामने मून देखा है, हमने सामने सन देखा है, और हम ऊपर प्लेन में जाते हैं तो प्लेन से भी हमें थोड़ा सा कर्व दिखता है, तो हमें समझ में आता है कि हाँ इतना समझ, इतना है हमें। और बाकी हमारा जो थ्योरी आई हुई स्पेस की इमेजेस आई हुई, उससे हमें पता चलता है। चंद्रमा दिख रहा गोल, सूर्य दिख रहा गोल, तो धरती भी गोल ही होगी। और अगर सच में ऐसा होता तो आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाओगे, तो एक पॉइंट से चलोगे, चालू करोगे, और पॉइंट अब नीचे गिर जाओगे, स्पेस में आ जाओगे। सीधा चलते चले जाओगे ना फ्लैट अर्थ पे, तो स्पेस में गिर जाओगे नीचे, क्योंकि अर्थ फ्लैट है। तो ये सब कर करके भी क्वेश्चनिंग करके, रीजनिंग करके समझा जाता है। यही नहीं है कि प्रत्यक्ष दिखा दो सर, ऊपर जाएंगे, ऊपर स्पेस पर बैठेंगे, यहां से लेकर वही बात होगी जो आदमी कमेंट करता है कि आत्मा को कैसे देख सकते हैं, आत्मा कैसे देख सकते हैं? भैया आत्मा तो दिखती ही नहीं है। क्या आत्मा के अंदर बाहर निकल के देखें क्या? आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस करें क्या? तो एक 2016 की बात है, एक बार मैंने आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस के बारे में सर्च कर रहा था, तो मैं सोच रहा था चलो एक बार आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कर लेते तो पता चल जाएगा मैं ये शरीर नहीं हूं। क्योंकि उस वक्त मेरे को यकीन नहीं होता था कि मैं शरीर नहीं हूं। सच में मुझे लगता था, मुझे लगता है मैं शरीर ही हूं। फिर धीरे धीरे समझ में आया मैं शरीर नहीं हूं। लेकिन वो धीरे धीरे आया। कैसे आया देखो, वो मैं नहीं बताऊंगा, तो बता चुका हूं, बट ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। तो क्या हुआ 2016 में मैं जब ये रिसर्च कर रहा था, तो मैंने एक वीडियो पे पहुंचा, मैं यूट्यूब पे। वहां पे एक वीडियो में बोल रहा था वो कि आउट ऑफ बॉडी तो होता ही होता है। अरे बाप रे बाप, बहुत खतरनाक होता है। आप शरीर को छोड़ सकते हो, आप शरीर से बाहर निकल सकते हो, देखते हो शरीर सामने लेटा हुआ है, सो रहा है। और आप कभी भी ये मत करना आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस में। पहली चीज तो जैसे ही आप बाहर निकलो, वहां पे कुछ बीइंग्स होंगे, चुड़ैल भूत आत्माएं या कुछ देवता, उनसे बात मत करना कभी। तो मैं डर गया अंदर से, मैंने कहा अरे ये क्या हो रहा है। फिर उसने एक वो जो बात बोली आज तक याद है मुझे। उसने कहा कि आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस करते वक्त मिरर के सामने मत खड़े हो जाना, नहीं तो आपको भूत दिखेगा। आप खुद भूत हो, आपको अपना ही भूत दिख जाएगा। मैंने कहा अरे बाप रे बाप, और डर गया मैं। आज ये सब कुछ सत्य नहीं होता है। There is nothing called as out of body experiences unless and until you have certain tendencies which is really complicated. We'll not go into that. Let's not go into that, okay? Whether it is there or not, because as per my understanding, it is not there. There are things which are mystical, but that is not there actually. But I have seen Sandeep's video जहाँ पे उन्होंने बोला था, but let's not go into that. Maybe it is an illusion, whatever. That is not important only ना. That's what I'm telling ना. It's not important. तो ये था, मिरर के सामने अब खड़े हो जाओ, भूत दिख जाएगा। मैंने कहा बाप रे बाप, ये तो बहुत खतरनाक है देखने वाला। फिर थर्ड आई के बारे में पढ़ना चालू किया मैंने। एकदम से थर्ड आई आने लगा यूट्यूब पे, हर जगह थर्ड आई। और थर्ड आई बोल रहे, थर्ड आई अगर खुल गई चुड़ैल भूत आत्मा दिखने लग जाएगी। तो मैं और डर गया। मैंने कहा मेरा तो यहाँ सेंसेशन हो रही है, अगर ये खुल गया तो क्या होगा। तो ये सब चीजें थी, होती थी।
उस वक्त कोई बताने वाला नहीं था, अपने आप एक्सप्लोर किया। 7 साल बाद 8 साल बाद ये सब चीज़ें मेरे को बचकाना